Welcome back, ladies and gentlemen. Day two, Dive in 2020. We've had some phenomenally interesting conversations yesterday, which was part of the diversity track, where we had women in leadership, where we had trans inclusion, and a lot more going on yesterday. We have equally exciting sessions lined up today for all of you, and I'm completely looking forward to the first fireside chat conversation that's coming your way. But before that, a little bit about Dive In. And we've had a survey that's gone through, and we also have had over 20,000 registrants across the world. So it's a phenomenon that you're part of if you're attending. New research from the Dive In Festival on diversity and inclusion highlights the urgent need for companies to give diversity and inclusion their full attention, especially in times of crisis. So there was a survey that was conducted, 12,000 registered attendees across 30 countries that ran up to now, and now 20,000 plus. In its sixth year, we are going new places and we're gaining new audiences. 70% of our attendees will be attending for the first time, indicating the shift in attitude towards the importance of D&I, especially in the insurance industry. 97% of the respondents have agreed that diversity and inclusion plays a crucial role in building resilience to help overcome the many challenges that businesses are facing. Almost all of them agree that the pandemic has highlighted an even greater need for businesses to focus on building inclusive workplaces. Today's track, like we had a track yesterday, today our track is on contextual bias, caste, religion, region, and many more. Cultural diversity is something that we talk about, and cultural diverse organizations are also performing a lot better when it comes to their overall matrices of business and business performance. The first session is a long, hard look at ourselves, identifying various aspects of what we have in terms of cultural diversity and context. A fireside chat with Megha Parmar, the rise of the Queen of Everest. Megha has surmounted several odds, including a lack of funds and inadequate access to education en route to summiting Mount Everest. She will also talk about how she started her work in the state government to become the brand ambassador of Beti Bachao, Beti Padhao, Educate Your Daughter campaign. Megha is a mountaineer, first woman from the state of Madhya Pradesh in India to scale the Mount Everest. And moderating this is none other than the amazing journalist and broadcaster, Sanyukta Banerjee. Sanyukta, the stage is all set for you. And Megha, the conversation will be in Hindi. Looking forward to it. Please take it away. Thank you for joining us this afternoon. Thank you so very much, Shreya, for all the kind words. And yes, I'll be moderating this fire chat session with Megha Parmar. Now, Megha Parmar is the first lady to conquer Mount Everest from Madhya Pradesh. She led the expedition. She hails from a village, coming from a state where the sex ratio is alarming, where girl child is often treated as a liability, in a society which does not allow women to be self-dependent and pursue her own dreams. It is no mean task, probably as tough as climbing the Mount Everest itself, to fight all these odds and conquer them before conquering the highest peak in the world. That's exactly what Megha did. And as you all know, we are doing this fire chat in Hindi, as Megha is unable to communicate in English as well as she does in Hindi, and I'll try to translate what she said. So my very first question to Megha would be that how was her childhood and early life? मेघा, बहुत बहुत स्वागत तुम्हारा एक बार फिर इस फायर चैट सेशन में। और शुरुआत में हम तुमसे यही जानना चाहेंगे कि तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी पृष्ठभूमि कैसी रही, तुम कहाँ से हो, बचपन किस तरह का था, और उस माहौल ने तुम्हें कितनी मदद की तुम्हारे इस मिशन को, मिशन माउंट एवरेस्ट फतेह करने को आसान बनाने के लिए। बताओ मेघा। तो बाकी का पूरा परिचय तो आपने मेरा दे ही दिया। तो मैं जो हूँ, मध्य प्रदेश में एक जिला आता है सीहोर। सीहोर के अंदर एक गांव आता है भोजनगर, प्रॉपर मैं वहां से हूँ। तो आपको बता दूं कि मेरा जन्म भी डॉक्टर के हाथों नहीं हुआ है, दाई के हाथों हुआ है। और मैं अभी 24 वर्ष की हूँ, 25वां वर्ष मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे घर में मेरी 6 बहनें हैं, और हम ऐसे मंझले पापा और बड़े पापा की मिला के 7 बहनें। तो मेरी कमी है वही मेरी ताकत है। बचपन से मैं बहुत जिद्दी हूँ अभी भी, और उसी वजह से मैंने मम्मी की बहुत मार खाई है, पर वही मेरी ताकत है। तो बचपन में जब बहुत सारी बहनें घर में लड़कियां होती है ना, तो थोड़ा सा अंतर आ ही जाता था। जैसे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे कि टाइम पास के लिए लड़कियों को बस गवर्नमेंट स्कूल में भेजा गया है।
आप यकीन मानेंगे मेरी जो जन्म तारीख है मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में हमारे घर के 4 बहन भाई की सेम डेट है। वो इसलिए कि दादाजी गए थे एडमिशन कराने, उन्होंने कहा कि सबकी एक ही डाल दो, सब एक ही साथ पैदा होएंगे शायद। 4 अलग-अलग, जैसे मेरे पापा, बड़े पापा, सबकी हम लोगों की सबकी डेट सेम है। एक ही दिन सबकी मार्कशीट में। और हम जब 8th में आ गए तब हमें समझ में आया था। तो मैं जब बड़ी हो रही थी तो क्या होता था, मुझे घी मक्खन दूध सबका बहुत शौक है, पर घर पे क्या होता था, रोटियां बनती थी तो चुपड़ी रोटी वो भाई 2-4 भाई लोग हैं तो उनको दे दी जाती थी, और बहुत सारी लड़कियां, कोरी रोटी हमको दी जाती थी। तो मैं हमेशा घर पे बोलती थी कि मेरे को भी चुपड़ी रोटी चाहिए, मेरे को कोरी रोटी नहीं खानी। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो बोलते थे कि गाँव की भाषा में, हमें खिला के कहीं करेगा, हम तो कुछ साल में ससुराल चली जाओगी, हम खिलाएंगे को, नाम रोशन करेगा, खिलाएगा पिलाएंगा तो काम करेगा। तो उस समय मुझे ऐसा होता था कि मेरे को कुछ ऐसा करना है कि मेरे पापा को प्राउड फील हो मेरे ऊपर, उनको लगे कि मेरे को यदि वो अच्छे से परवरिश देते हैं तो वो बहुत अच्छा कर। ये मेरे मन में हमेशा उस समय था। जब मैं बड़ी हुई तो हमारे यहाँ पढ़ाई ज़्यादा आगे तक नहीं करवाई जाती है, और मेरी आज से 1 साल पहले तक मेरी खुद की एंगेजमेंट को 17 साल पूरे हो गए थे। मैं जिस परिवेश में आती हूँ हमारे यहाँ छोटे-छोटे उसमें मंगनी कर दी जाती है, और जैसे ही आप 12वीं पास करते हैं, जैसे आप 18 साल के होते हैं तुरंत शादी कर दी जाती है। शादी क्या करते हैं, बहुत सारी बहनों की शादी एक साथ इसलिए करते हैं कि जो खाने का खर्चा होता है ना बहुत सारे लोगों का वो बच जाता है। पर जब मेरी मेरी सगाई अब छूट गई, वो 1 साल पहले पिताजी ने छोड़ दी है, पर मेरी एंगेजमेंट को 17 साल पूरे हो गए थे। तो मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा करवाने का वो नहीं था, पर मेरे पिताजी को लगा कि छोरी यदि ज़्यादा दिन घर में रही तो बड़े घर के लोग हैं, वो जल्दी से शादी कर देंगे। तो मेरे को मामा जी के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया, मामा साहब के घर 6 से लेके 12th तक मैं वहाँ पढ़ी हूँ। जब आप दूसरों के घर रहते हो ना, तो आपको फ्रिज से एक टमाटर भी खाने का मन करे तो बहुत सोचना पड़ता है, ले या नहीं ले। बहुत चीज़ें मेंटली प्रिपेयर कर देती है। जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, अपने मम्मी-पापा के पास तो आप जिद से बोल देते हो कि भूख लगी है, मेरे को खाना दो। जब आप दूसरों के घर होते हो, आपको कड़ाके की कड़क कड़क वाली भूख लगती है, आपके कपड़े भले फट रहे होते हैं, कोई पूछने वाला और ध्यान देने वाला नहीं होता आपके ऊपर। तो ये चीज़ें बहुत मेंटली प्रिपेयर कर दी थी मुझे जब मैं मामा के घर थी। जैसे ही वहाँ 12th कंप्लीट करके यहाँ आई, तो वही शादी की प्लानिंग फिर स्टार्ट हो गई थी, शादी करना है सारी बहनों की। पर आप मेरी लाइफ में गोल्डन चांस, मेरा प्लेटफॉर्म, जैसे हम सबकी लाइफ में हमें पता नहीं होता कि प्लेटफॉर्म कब मिलता है, तो मेरी लाइफ का जो प्लेटफॉर्म था ये हुआ था कि मेरे भाई लोग जो हैं वो पढ़ने के लिए सीहोर गए थे। तो जब वो पढ़ने के लिए सीहोर गए थे तो उनका मन नहीं लगता था, वो बार बार भाग भाग के गाँव आते थे, और घर के लड़कों को तो पढ़ाना जरूरी है ना, गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियों का इतना थोड़ी नहीं था उस समय। तो बड़े पापा लोगों को बड़ा टेंशन कि हमारे घर के बड़े बच्चे आ नहीं रहे। जब वो सीहोर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ बाई के हाथों का बच्चों को, लड़कों को खाना पसंद नहीं आ रहा है, काम करना पड़ रहा है, इसलिए वो भाग भाग के वापस गाँव आ रहे। तो लक देखिए, उनके एक रूम के जस्ट सामने गर्ल्स कॉलेज था। तो मेरे ने डिसाइड किया कि लड़कों का खाना बनाने के लिए मेघा को गर्ल्स कॉलेज में डालते हैं। खानदान की पहली लड़की ग्रेजुएशन भी कर लेगी और लड़की की रोटी भी बन जाएगी। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, जब मैं सीहोर गई थी और गर्ल्स कॉलेज में गई थी। मैं वहाँ डेली, हमारा मकान जो था दूसरी मंजिला पे हमारा रूम था, नीचे हेड से मुझे 14-15 कुप्पे पानी लेके आना पड़ता था। यहाँ बहुत विशिष्ट लोग बैठे होंगे, उन्हें कुप्पा मैं कैसे समझाऊं। जैसे फॉर्चून ऑयल के बड़े बड़े प्लास्टिक के वो होते हैं ना डब्बे, उनको कुप्पे बोलते हैं हमारी गाँव की भाषा। तो वो कुप्पे मुझे पानी लेके जाना पड़ता था, 14-15 कुप्पे, क्योंकि सभी लोग नहाते थे, सब कुछ रेडी होते थे। तो मुझे ऐसा लगता है उस समय मैं थक जाती थी, सुबह सुबह सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, पैर दुख जाते हैं मेरे। पर आज मुझे लगता है शायद मैं उस समय वो पानी के भरती ही नहीं तो शायद मेरे पैर इतने मजबूत नहीं होते ना कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाए। तो हम सबकी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी होती है, जो ऊपर वाला जाने अनजाने करवाता है। गर्ल्स कॉलेज में मेरी लाइफ को पंख लगना स्टार्ट हुए, क्योंकि वहाँ घर वालों ने भी फ्रीडम दे दी कि लड़कियां लड़कियां हैं पूरी। और गर्ल्स कॉलेज में मैं जब गांव से गई थी ना, तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल की आई हुई बच्चियां जो होती हैं वो थोड़ी अलग होती है। हम गांव से जब जाते हैं तो हम लोगों को ना भाषा भी नहीं आ पाती, शहरी भाषा की हम बोले क्या, क्योंकि हम तो गाँव में एक जैसी भाषा बोलते हैं। उस समय मुझे यूनिफॉर्म से पहली बार प्रेम हो गया था, इसलिए कि वहाँ फिर सारे बच्चे एक जैसे लगते थे, मैं भी उनके जैसी लगती थी। और हम लोगों के बाल थोड़े पीले होते हैं गाँव के बच्चों के, वो इसलिए पीले होते हैं क्योंकि हम आज भी मिट्टी से सिर धोते हैं। मैं भी शैम्पू कभी यूज़ नहीं करती हूँ, आज भी हमारे जो तालाब की मिट्टी है उसी से धोती हूँ। उससे आप जो लोगों के समय से पहले सफ़ेद बाल हो जाते हैं वो नहीं आते हैं, बाल हमेशा घने रहते हैं, तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये वजह थी। तो मैं गर्ल्स कॉलेज में गई तो मुझे वहाँ बड़ा डर लगता था, पर मैं डेली अपनी यूनिफॉर्म को तकिए के नीचे रख लेती थी। दूसरे दिन एकदम वो इस्त्री की हुई मिलती थी, इस्त्री मतलब प्रेस किया हुआ कपड़ा होता है ना, आप भी अपना सकते हो यदि आपके पास
आयरन ना हो तो आप तकिए के नीचे रख के सोइएगा, दूसरे दिन आपके कपड़े एकदम वैसे होंगे। और मैं अपने आप को उस समय अप्सरा समझती थी जब मैं कॉलेज जाती थी। कॉलेज में मुझे पंख लगना शुरू हुए, मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी, एनएसएस में, हर चीज़। मैंने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में इंडिया को रिप्रेजेंट किया मालदीव में। मालदीव में सब लोग हिंदी बोलते, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात थी। मैंने वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मैंने बताया कि हमारे देश में सब कुछ है। हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता कि सोने का था, वो इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर्वत है, यहाँ मरुस्थल है, यहाँ समंदर है, यहाँ सब धर्म के लोग हैं, यहाँ सब तरह के दिखने वाले, सारी बोली बोलने वाले लोग हैं, फिर भी हम रहते हैं, इसलिए हमारा देश सोने की चिड़िया है। वो मेरे लिए खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज हुई थी। ये तब की बात थी जब मैं कॉलेज हो गई थी, फिर मुझे स्टूडेंट ईयर ऑफ द अवार्ड मिला, पापा को कॉलेज में बुलाया गया, उनको लगा कि हमारी छोरी थोड़ा अच्छा कर रही है, दूसरी बच्ची से अलग कर रही है। फिर मैंने 2 गाँव को एलईडी युक्त किया था, तो मेरा बड़ा नाम शाम हुआ था, फिर स्टेट अवार्ड मिला था। और मेरे हाथों एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। वो कांड ऐसा हुआ था कि मैं सेकंड ईयर में आ गई थी, तो मेरे कॉलेज की कुछ लड़कियां गर्ल्स कॉलेज की वो वाटर पार्क जाने का जिद करने लगी। मैं भी वाटर पार्क चली गई। हमारे गाँव में वाटर पार्क जैसी जगह बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। आपके लिए और मेरे लिए बात बहुत नॉर्मल चीज़ है वाटर पार्क। गाँव में वाटर पार्क गई थी छोरी, चिपके हुए कपड़े पहन के गई थी, और घर में पापा बेचारे मुंडी लटके हुए खड़े हैं, घर के सारे लोग बैठे हुए थे, सब बोल रहे थे कि आज तो लड़की वाटर पार्क गई है, कल से पता नहीं क्या क्या करेगी। और फाइनली ये डिसाइड हो गया था कि मेरी पढ़ाई पढ़ाई छुड़ाई जाएगी अब। तो मेरे पिताजी ने बोला कि बुराई बेटा एम नहीं है कि तुम वाटर पार्क गई, बुराई इसमें थी कि तुम बिना बताए गई। मेरे को बताती तो मैं इन लोगों को कुछ बोलता या करता। फिर मेरे पिताजी ने वापस मेरे पिताजी उस समय मेरे ब्रह्म से शामित हुए। उन्होंने मुझे वापस भेजा और बोला कि बस ये सोच के तू आगे बढ़ना कि तू जो भी करेगी, तू अच्छा करेगी तो भी हमारा नाम होगा, तू बुरा करेगी तो भी हमारा नाम होगा। हम कुछ भी करते हैं इसका असर केवल हमारे ऊपर नहीं पड़ता, हमारी फैमिली, हमारे समाज सब पे फर्क पड़ता है। ये लाइन मैंने फिर गांठ बांध के रख ली थी। फिर मेरी लाइफ में ना नई नई चीजें बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। गर्ल्स कॉलेज में मैं सब चीजों में पार्टिसिपेट करती थी, डांसिंग, टोटल चीज। फिर मुझे लगा कि मैं शारीरिक रूप से बहुत अच्छी हस्त पुष्ट हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, तब मुझे लगा कि मैं खेल में अच्छा कर सकती हूँ। तो अब इतनी जर्नी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता सकते हो कि मैं बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हिंदी जिस तरह से तुमने दिल से बोला है ना, तो वो दिल की बात दिल तक पहुंच ही जाती है। बट डेफिनेटली इट वाज वन एन अमेजिंग सागा ऑफ स्ट्रगल्स, देयर वाज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम फैमिली एंड सराउंडिंग्स. Constant oblique remarks would have been a discouragement for any other girl, but not for Megha Parmar. She is made of sterner stuff. Megha, talk us through when you first realized that you want to climb the highest peak of the world. कब आपको लगा कि जो highest peak है इस दुनिया का, मैं उसको पता करूंगी, मैं उस पे चढ़ूंगी? ये बहुत आम बात नहीं होती है, तो कैसे लगा? And I would also like to make a point here that there's a saying that an easy way to skip success is to skip opportunity. आप सफलता को, जो उसके सफलता के दरवाजे हैं, वो बंद कर देते हैं जब आप अपॉर्चुनिटीज को, मौकों को मिस करना शुरू कर देते हैं। मेघा ने बहुत छोटे छोटे मौकों को भुनाया है अपनी सफलता के लिए, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो मेघा, बताइए कब आपने सोचा कि आप माउंट एवरेस्ट पता करना चाहती हैं? अच्छा सर, जब मैं कॉलेज में सब में पार्टिसिपेट करती थी और मैं घर जाती थी, तो मैंने हमेशा मम्मी को घर से 2 बार बाहर निकलते हुए देखा, रक्षाबंधन, संक्रांति में। तो मुझे ना मम्मी भी बनना है, बेटी भी बनना है, सब कुछ करना है, पर मेरी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैं मेघा परमार हूँ। जैसे आप तो संयुक्ता बनर्जी है, तो आप संयुक्ता बनर्जी हैं, आप भी डिफरेंट डिफरेंट रोल अदा कर रही हैं, पर आपकी एक नाम है, सब लोग जानते हैं आपको। वरना वही आप सब कुछ करते तो क्या आपकी पहचान रहती है? आइडेंटिटी होना जरूरी है ना, पहचान। बस मेरा ये था कि भले मेरी शादी हो जाती, गांव में सबसे अच्छी रोटी बना के बेचती लड़की होती, कुछ भी कर रही होती, पर मेरे को ये नहीं पता उस समय माँ। मेघा, आर यू देयर? आपको एक मिनट तो कॉल बिल्कुल आया। बिल्कुल। हाँ हाँ। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। हेलो, आकांक्षा कुछ समय के लिए कॉल मत कीजिएगा, मेरा वीडियो चल रहा है, प्लीज़, एक इंटरव्यू चल रहा है। बाय। क्या आपको सुनाई पड़ रहा है मैम? ओके, हाँ हाँ, सॉरी, बिल्कुल कॉल सुनाई आ पड़ जाते रहा हैं। है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। हेलो, हाँ आपने जी, शायद अपना कैमरा स्टॉप किया होगा। ओके हाँ, ओके। ओके। हाँ, बताओ।
तो वही वही था कि खुद की एक अलग पहचान बनानी थी, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। फिर उसी समय ना अखबार में पढ़ा था मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, तो क्लिक हुआ। प्रदेश के लड़कों ने किया, मतलब लड़की ने किया, वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती, मेरे को भी तो 2 हाथ पैर दिए हैं ना। और बछेंद्री पाल मैम ने 32 साल पहले माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था, और मध्य प्रदेश से कोई लड़की कुछ भी नहीं रही है, तो मैं क्यों नहीं हो सकती। जब हम अपने आप को किसी से कम नहीं आंकते, तब हम कुछ भी कर सकते हैं। शायद आपको पता होगा, एक मेंढक था, एक कहानी है कि वो तालाब में था, लोग उसको बोल रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पर उसको सुनाई नहीं दे रहा था कि उसको लग रहा था लोग बोल रहे हैं तुम कर सकते हो। जब तक हमको कोई बताने वाला नहीं होता ना कि तुम नहीं कर सकते, तब तक हमें ऐसा लगता है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। वही मेरे हाल थे। फिर मैं पहली बार मनाली इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए गई। हमारे यहाँ भारत में इसके 5 इंस्टीट्यूट होते हैं। माउंटेनियरिंग यदि आपको स्टार्ट करनी थी, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए आइस क्या है फ्रिज में रखी हुई, पर हमें सिखाया जाता है वहाँ सॉफ्ट आइस पे कैसे चलते हैं, ब्लू आइस पे कैसे चलते हैं, ब्लैक आइस पे ग्लेशियर पे कैसे चलते हैं, क्रैम्पॉन कैसे पहनते हैं, इक्विपमेंट कैसे यूज करते हैं, जंगलों में आपको यदि छोड़ दिया जाएगा तब सर्वाइव कैसे करोगे, आप इग्लू बना के कैसे रहोगे, ये सब कुछ। और जब मैं कोर्स करने गई थी तब का भी एक छोटा सा किस्सा था। जब मैं पहुंची थी तो मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम था। जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो कंफर्म टिकट अलग होती है, वेटिंग टिकट अलग होती है, कंफर्म वाला नहीं आएगा तब आप वेटिंग वाले जा पाओगे। वही मेरे हाल थे। तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा यदि तुम जाओगी नहीं तो तुम्हारा नाम कैसे आएगा। जब मैं वहां पहुंची तो वहां बोल उन्होंने इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे बोला कि आप क्यों आ गई मध्य प्रदेश से यहाँ, आपका नाम वेटिंग में है। कोई शाम तक नहीं आएगा, और यदि मैं मध्य प्रदेश से नहीं आती तो फिर तो मैं आ ही नहीं पाती ना। फाइनली एक व्यक्ति वहां आया नहीं और मेरा नाम वहां लिस्ट में ऐड हो गया। दूसरे दिन से मैं कोर्स स्टार्ट कर दी। पर मैंने ये सोच कर गई थी मैं कि चाहे जो हो जाए, मैं वहाँ पोर्ट के काम कर लूंगी, लॉर्ड फेरी बन के कोर्स करूंगी, पर बिना कोर्स करे मैं वापस नहीं आऊंगी। हमको अपॉर्चुनिटी के लिए करनी पड़ती है, कोई आपको हाथ फैला के देना नहीं आता। जब ऐसा टाइम हो जब आप सपने के लिए भिड़े हुए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वहां से कोर्स किए 6000 के माउंटेन्स क्लाइंब के। फिर इसके लिए 25 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग चीज रही थी। सो मैंने लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं। उस समय मैं सीहोर और यहाँ भोपाल में एक छोटी सी जॉब कर रही थी। सो मैंने लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है। तो मैंने फिर वहाँ जब स्पॉन्सर्स के पास जाती थी तो मैं ऐसे जाती थी कि सर आपने सुल्तान मूवी देखी है, तो वो लोग बोलते थे हाँ देखिए। तो मैं उनको बोलती थी सुल्तान मूवी में कैसे कुकर वाला फेमस हो जाता है, यदि आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे तो आप भी मेरे साथ फेमस हो जाओगे जब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगी। अरे ये इतनी पागलपंती लगती थी मुझे। कुछ लोग हाँ करते थे, कुछ लोग ना करते थे, पर मेरे को ना 15,000 रुपए इकट्ठे हुए थे। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, लोग हाँ करेंगे या ना करेंगे, मेरा क्या जा रहा है कि तो देखूं, ना करके पछताने से कहीं बेहतर है कुछ करके पछताना। फिर भवन के चक्कर लगाए, मंत्रियों के चक्कर लगाए। फिर हम कहते ना हम भिड़े रहते तो कुछ तो अच्छे लोग होते। तो मध्य प्रदेश के एक अधिकारी जी थे, उन्होंने मुझे हर जगह हैरान परेशान देखा था। शायद आपने विद्या बालन की एक मूवी देखी जॉली जासूस, उसमें सूट के पीछे कैसे बस बैग टांग के घूमती रहती है। तो मैं जब गांव से आती थी तो हमारे गांव में ना जींस और लोअर टी शर्ट अच्छे परिधान नहीं माने जाते, तो मैं सेम सलवार सूट में आती थी, पीछे बैग टंगा हुआ आता था। तो एक अधिकारी पहले तो मुझे बोला था कि अरे ये सलवार सूट वाली लड़कियां माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगी तो हमारे खिलाड़ी बच्चे क्या करेंगे। फिर एक जगह किसी ने मुझे कहा था 18 लाख लड़की तूने देखे, तुम्हारे खानदान ने देखे। डायलॉग मिलना मुझे बहुत जरूरी था ताकि मुझे फील हो, या वो दर्द होना जरूरी था। तो ये बातें भी बहुत सारी हुई। फिर अच्छे लोग भी मिले, उन्होंने कहा बच्ची तुमको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और तुम रोज वल्लभ भवन की सीढ़ियों के चक्कर लगाती हो। डेली लगाती थी मैं, हर दिन। और मैं आज भी थैंक यू बोलती हूँ जो गेट पे खड़े रहते हैं भैया लोगों का। वो मुझे झूठी पर्ची दे के अंदर तक भेज देते थे। मैं हैरान परेशान सीहोर से आती थी तो वो मुझे खाना तक खिलाते थे उनके टिफिन में। तो सक्सेस कभी एक की नहीं होती, उसमें बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूट होता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग आपके लिए भले झूठी दुआ कर देते हैं और वो भी सच्ची हो जाती है तो वो भी इम्पोर्टेंट होती है। सो फाइनली 2018 में मैं माउंट एवरेस्ट के लिए गई थी। पूरा 25 लाख का स्पॉन्सर मिलने के बाद पहाड़ों के चलने सब डिफरेंट। आपका हार्ट ऐसे पंप करता है जैसे आप 10 मंजिला इमारत चढ़ रहे होते हैं, वैसा बेस कैंप में पंप करता है। हमारे जो जूते होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं। हमारा हम लोग क्रैम्प पहनते हैं जो लोहे के दांत नुमा होता है, जो कि बर्फ को चलने में ईजी होता है। हम लोग रात को क्लाइंबिंग करते हैं क्योंकि दिन के टाइम एवलांच आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रात के टाइम स्नो हार्ड होती है। हम लोगों का जो एक्सपेडिशन होता है वो 2 महीने का होता है। हमारे कैंप होते हैं वो 4 कैंप होते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। और चारों कैंप की डिफिकल्टीज बढ़ती जाती है। हम हर दिन जो
सैनिक एक्सपीडिशन में एक्लिमेटाइजेशन पीरियड करते हैं। कैंप 1 जाते हैं फिर वापस आते हैं, कैंप 2 जाते हैं फिर वापस आते हैं, कैंप 3 जाते हैं फिर वापस आते हैं। सबसे ज़्यादा कुंभू ग्लेशियर में डेथ होती है, जहाँ से मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया इधर की तरफ से। कैंप 1 जब आप पार करके जाते हो, वहाँ बर्फ़ खोदते हो, वो पिघलाते हो और वहाँ पानी पीते हो। आपको हाई एल्टीट्यूड में पहले आपकी बॉडी फैट खाती है, फिर मसल्स खाती है, फिर धीरे-धीरे आप खाना शुरू कर देती है, क्योंकि वहाँ कुछ भी पता नहीं है आपकी बॉडी को प्रॉपर। कैंप 2 जब जाते हो तो वहाँ लोगों को बहुत तेज़ हेडेक होता है, खून की उल्टियाँ करते हो आप लोगों को देखते हो। कई लोगों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है उंगलियों में, जिससे उंगलियां काटनी तक पड़ जाती है। पल्मरी एडिमा हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, हेलोजिनेशन हो जाता है। ये हम सामने आसपास देखते हो। कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट, जहाँ आपको वॉशरूम भी जाना होता है तो कैराबिन अटैच करके जाना पड़ता है। और मेरे शेरपा की चेन मैं खोलती हूँ पीछे से, और वो चेन मेरी वो मेरी खोलता है। वहाँ आप लड़का लड़की नहीं होते हो, वहाँ एक इंसान होते हो। और लड़कियों के लिए वहाँ चैलेंजेस इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ हार्मोन्स बहुत खतरनाक वाले चेंज होते हैं। तो मैं 2 महीने में करीबन मेरे 5 बार मेरे पीरियड्स आए थे वहाँ पर। तो पैड पहनने की वजह से बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते थे, ऐसा लगता है पैड दूर दूर करके चलो, और बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। और वो इतने वीक हो जाते हैं हम कि वो बोल भी नहीं पाते शेरपा को कि कितनी वीकनेस लग रही है। सो ये चैलेंजेस डिफरेंट हो जाता है। फिर कैंप 3 के बाद हो जाता है जहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती। कैंप 3 के बाद डेथ जोन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेते हैं। कैंप 4 के रास्ते में जितने भी ग्लेशियर है वो मूवमेंट करते हैं, डेड बॉडीज उभर कर दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। कई बार उन डेड बॉडीज के बगल से क्रॉस करना पड़ता है, कई बार उनके ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है। जैसे मैं अभी दिख रही हूँ, डेड बॉडी सेम वैसी ही दिखती है, बस उनको उल्टा कर देते हैं कि उनका चेहरा ना दिखे, पर क्रॉस उनके ऊपर से करना होता है। तब दुनिया का ऐसा कोई क्लाइंबर नहीं होता जिसका दिल नहीं हिलता है। ऐसा लगता है कि कहीं इसकी जगह मैं तो नहीं होऊंगा अगला, हम भी तो वही करने जा रहे जो उनका सपना था। फिर कैंप 4 जब हम पहुंचते हैं, वो डेड बॉडीज का हब होता है। सबसे ज़्यादा डेथ कैंप 4 में होती है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंबर थक जाते हैं, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। जितनी भी जिन लोगों की भी डेथ होती है तो उसे स्लीपिंग बैग में बंद करके, जैसे बोरियां किसी गेहूं की खप्पी नुमा रखते हैं वैसे ही रख दी जाती है, और टेंट वहीं लगे हुए होते हैं। उसके बाद 18 घंटे का सबमिट पुश होता है, जो सबसे टफ होता है। वो करने के लिए मैं ऊपर गई, और 2018 की बात है, और मात्र थोड़ा सा बचा था 700 मीटर, और हम लोगों का मेरा ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड बचा था। तो मेरे शेरपा ने मुझसे कहा कि बहनी, बहनी मतलब बहन, हम यदि सबमिट कर लेंगे तो हम जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा पहाड़ वही है, हम अगले साल कर सकते हैं, जिंदगी रही तो कुछ भी हो सकता है। मात्र 700 मीटर से मुझे वापस आना पड़ा था। जो बच्चे छोटी छोटी चीजों में हिम्मत हार जाते हैं ना, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि मेरा तो सब कुछ वही था जो मैं 700 मीटर से वापस आई थी। तो मुझे 700 मीटर से छोड़ के वापस आना पड़ा था माउंट एवरेस्ट का टॉप। हम वापस आए तो यहाँ पता चला कि अरे यहाँ तो अखबारों में टॉप हेडिंग छप चुका है, मध्य प्रदेश की पल्ली लड़की ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है, सभी अखबारों की हेडिंग। मम्मी पापा की भी हो गई। जब मैं काठमांडू पहुंची, मैंने कहा क्या हुआ। उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को लगा था 9 घंटे बाद तो लड़की सबमिट कर लेगी। पर अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, आप आत्मग्लानि के साथ नहीं रह सकते ना। तो मैंने अपने फेसबुक पर लिखा था कि नहीं, मेरा 100 मीटर नहीं हुआ। चीजें उल्टी हो गई। फिर गांव के लोग पापा को बोल के आने लग गए, तुम्हारी छोरी ने 700 मीटर नहीं करी हो। एक तरह से मैं जब गांव पहुंच गई थी, मेरे को लगा था मैं डिप्रेशन में पहुंचने वाली हूँ। जब भी आप हताश हो, परेशान हो, आपको लगे कि आप डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे टाइम पे कुछ मत करो, कागज पेन उठाओ, अपनी सारी मन की बातें लिख दो। मेरे को तो बहुत बड़ी असफलता मिली थी ना, तो मैंने लिखा कहाँ कमी रह गई थी। हो सकता है मैं इंडियन फूड की आदी हूँ, तो मैंने बेस कैंप में प्रॉपर खाना नहीं खाया। मैं मेंटली प्रिपेयर थी, पर मैं फिजिकली प्रिपेयर नहीं थी। ये कमियां मैंने लिखी, और मेरा फिर पहला कदम स्टार्ट करने के लिए मैं घर से निकल गई। अब यहाँ तक आप ट्रांसलेट कर सकते हो। Seriously, I'm speechless, Megha. So it was when somebody else climbed Mount Everest from Madhya Pradesh, and she read the news, and that was the time she thought, why a girl can't do it, you know? Why only a boy or a man had to do it? That's when she realized that Everest is calling. But for Megha, first attempt didn't end in success because of whatever reason, and she had to wait at the last base camp for many days. But she refused to give up. She was steadfast in her resolve to conquer the summit despite the adverse circumstances, even if that meant retreating temporarily and give it another go. She was ready for it. We say now that success is not the end
and failure is not fatal. It's the courage to continue that counts, and this is what Megha did. Now, Megha, everybody's keen to know that when did the final moment come? Tell us about the moment of glory. जब दूसरी बार आपने अपना एक्सपेडिशन शुरू किया, एक बहुत बड़ी मायूसी, बहुत बड़े डिप्रेशन को हटाते हुए, और फाइनली आपने एवरेस्ट फतह की, तो वो मोमेंट कैसा था? जो दूसरा आपका अटेम्प्ट था, जो सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, उसके बारे में बताइए। तो जब मैं गांव पहुंची तो अब मुझे ऐसा था ना कि मुझे पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। मैं कोर्स करने के लिए मनाली इंस्टीट्यूट गई और वहाँ मेरा आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग के दरमियान विलियर के हाथों से फॉल हो गया, मतलब उसके हाथों सेफ्टी छूट गई और मेरा फॉल हुआ वहां से। तो मेरी नीचे पत्थर थे, जैसे ही नीचे गिरी तो मेरे दांत बिल्कुल चिपक चुके थे। मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी में जब हम अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि दो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो चुके हैं। पूरा इंस्टीट्यूट ब्लैकलिस्ट हो जाता तो वो मुझे कमर में बेल्ट बांध के फटाफट मनाली की बस में बिठा दी। मनाली से दिल्ली मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे सफर रहा मैम। इतना दर्द मेरे को कभी नहीं हुआ, इतना भयंकर वाला दर्द जब मुझे हो रहा था। आधे पैसेंजरों ने उनकी कम्बल मेरे पीछे रख दी थी। मनाली से दिल्ली पहुंची, दिल्ली से फिर भोपाल आई। तब तक तो मुझे किसी की शक्ल तक नहीं याद है, कितने लोगों ने मेरी मदद की। मैं पहुंची, मैंने पापा को फोन किया तो मेरे पापा की भी गलती नहीं है, वो भी गांव से है ना, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा थारे जहाँ जाना हो वहां जा, तू घर वापस मत आ जाए। कमर टूटी छोड़ी से कोई ब्याह नहीं करेगा। पहली चीज में इतना बखेड़ो खड़ा कर दियो कि हमारी आधी इज्जत तो वैसे ही चली गई है, लोग एरिया। तो गांव आएगी तो दूसरी बहनों का रिश्ता होना मुश्किल हो जाएगा। तू गांव मत आ जाए, थारे जो करना है वो कर दे, बस घर मत आ जाए। मैं ऊपर वाले को 2 मिनट देख के मैं यही बोलती हूँ, भगवान जी सपना पूरा नहीं हुआ, एक शरीर अपना साथ है वो भी तोड़ दिया, अब बताओ अब क्या बचा। फिर मैं जब अस्पताल पहुंची, मेरे टीचर मुझे लेकर गए, हमने एमआरआई कराया तो पता चला कि मुझे 2 नहीं बल्कि 3 हेयरलाइन फ्रैक्चर है। हेयरलाइन फ्रैक्चर, बीच वाला फ्रैक्चर इसलिए डैमेज हो गया रास्ते के दचके की वजह से। फिर भी डॉक्टर बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, क्योंकि जो मेरा जो नीचे वाला फ्रैक्चर है, पूरा जो 3 चीजों को ज्वाइन करता है ना, हमारे पैर को, हमारी कमर को, वो फ्रैक्चर मेरा लास्ट आधा इंच बच गया था, वरना जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो सकती थी। तो मेरे उस समय मेरे टीचर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मैं उनके घर पे रही। संयुक्ता मैम आप मुझे दिख नहीं रहे हो? हेलो? लेकिन आपको देख पा रही हूँ मेघा, और सुन भी पा रही हूँ अच्छे से। ओके। सो जब मैं अपने टीचर के घर पे रही, तब मुझे फिर पता चला कि मुझे अब जल्दी जल्दी 2019 के लिए माउंट एवरेस्ट की तैयारी करनी, पर कमर तो टूटी हुई है, उससे रिकवर होने में 7.5 महीने लगे। मैं वापस बिस्तर से उठी तो मैं 82 kg की हो चुकी थी। फिर मुझे कोच मिले जिन्होंने कहा कि जब लोग सो रहे होते तुम ट्रेनिंग करोगी तब तुम सक्सेस होगे। फिर 2018-19 के बीच की बात है, तब मैं टीचिंग नगर स्टेडियम में डेली 400 मीटर का राउंड नहीं लगा पाती। फिर मैं एवरी दिन, हर दिन मैं 10 किलोमीटर डेली दौड़ती थी। हर सैटरडे 21 किलोमीटर दौड़ती थी। 4 घंटे की मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती थी। स्कूल में पार्ट टाइम जॉब करती थी, क्योंकि पैसे आने भी तो जरूरी है, घर का खर्च कैसे उठाऊंगी, वो करती थी। फिर 4 घंटे शाम को ट्रेनिंग करती थी और भट से आके सो जाती थी। इस दरमियान ना मैंने त्योहार मनाए थे, ना किसी से बात की थी। मेरे को एक मूवी ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया था, क्योंकि मैं भी बहुत फिल्मी हूँ और आप भी शायद थोड़े बहुत फिल्मी होंगे। मूवी हमें इंस्पायर करती है, अच्छे लोग अच्छी चीजें हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। अच्छा देखो, अच्छी बात करो, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। मांझी द माउंटेन मैन मूवी ने मेरी लाइफ को सबसे ज्यादा बदला। उसका एक डायलॉग था, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने अपना डायलॉग बनाया था, जब तक तोड़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो हो। सो फाइनली 2019 में हड्डी तो रिकवर नहीं हुई थी इतनी प्रॉपर, पर मैं फिट हो चुकी थी और मैं जाने के लिए रेडी थी। और मेरी मम्मी से मेरी तब से बात नहीं हुई थी, 1 साल से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था। मेरे टीचर्स सिर्फ मेरे साथ थे, मेरा ग्राउंड और मेरा टारगेट। और फाइनली मैं 2019 को पुराने चैलेंजेस के 22 मई सुबह 5 बजे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी, जहाँ से सारे माउंटेन्स छोटे छोटे नजर आते हैं, दुनिया गोल नजर आती है और वहाँ एक ही फीलिंग आती है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इससे ऊपर या तो आसमान है या भगवान है। वहाँ -47 डिग्री टेम्परेचर होता है, जैसे आपकी उंगलियां चंद सेकंड में गल सकती हैं, निकालोगे तो फोस्टफाइड हो जाएगा। वहाँ पिक्चर लेना, देखना, और ऐसा लगेगा कि हमने क्या अचीव किया, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है संयुक्ता मैम। Sayanta, we can't hear you. यस, अब आ रही है?
तो वाकई में मेघा जो तुमने किया, सपना सच करना आसान नहीं होता, और खासकर अगर जो सपना ही आपने देखा हो वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो. आफ्टर हैविंग अचीव्ड व्हाट नो अदर गर्ल अचीव्ड इन द स्टेट, after having conquered all your obstacles right from childhood, and then establishing the record of conquering the highest peak in the world, you are already a role model for the women of this state and the country. And you know, listening to Megha Parmar is like watching a biopic of Bollywood or maybe a Hollywood biopic. I'm sure she had that substance or the subject to make a very good, successful biopic. I would also like to know from Megha that what would you like to say to the girls who are still struggling to break free and realize their own dreams? Megha Beti Bachao Beti Padhao जो initiative है state government का, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, आप उसको लेकर भी बहुत काम करती है, हेल्थ के लिए आप बहुत काम करती है. तो क्या कोई संदेश आप देना चाहेंगी उन बेटियों के लिए जो शायद अभी भी कोई लक्ष्य नहीं तय कर पा रही हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, अपने सपनों को गढ़ने और उन्हें पाने का मादा नहीं रख पा रही हैं? ओके, उसमें छोटी सी चीज छूट गई है, क्या मैं बोल दूं? बस मैम, आने की जर्नी मेरी रह गई थी. सो मेरे साथ भगवान जी ने एक चीज और बहुत खतरनाक की थी. समिट पहुंचना बहुत इजी रहा मेरे लिए, फिर भी आना बहुत डिफिकल्ट रहा था. जब मैं वापिस आ रही थी तो आप यहाँ सनग्लासेस पहनते गिर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पहाड़ों पे भी आपका सनग्लासेस गिर जाता है. मेरे साथ वही हुआ था, धक्का मुक्की की वजह से. सूरज की किरणें बर्फ पे आती है और रिफ्लेक्ट हो गया मेरी रेटिना में जाती है, जैसे रेटिना झुलस जाती है. वही मेरे साथ हुआ था, मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था बिल्कुल भी. टाइम में आप जिंदगी भर के लिए अंधे हो सकते हो. 4 दिन के लिए आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है या 1 दिन के लिए. हमें मजबूरी में जल्दी जल्दी कैंप 4 पहुंचना पड़ा और मेरे शेरपा को लगा कि शायद मेरी रोशनी तब तक आ जाएगी. पता चला कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा. हमें कैंप 4 में रुकना पड़ा. कैंप 4 मतलब डेथ जोन, जहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया और कभी भी आप इस दुनिया में नहीं रहते. जब दूसरे दिन हम सुबह जागे तो मेरे शेरपा ने मुझे कहा, बहनी दिखाई दे रहा है क्या? दाई अभी भी नहीं दिखाई दे रहा. फिर हम जल्दी जल्दी नीचे उतरने से पहले मैंने शेरपा से पूछा, दादी बताओ रात को मुझे जोर जोर से झकझोर क्यों रहे थे? उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कि तुम मरी तो नहीं हो, क्योंकि अधिकतर क्लाइंबर इतना बॉडी थक चुकी होती है और ऑक्सीजन कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता. मैंने कहा ऐसा भी होता है? तो उन्होंने कहा अब ये बची हुई ऑक्सीजन है, जल्दी से नीचे, वरना ये भी रास्ते में खत्म हो सकती है. और जिसका हमें डर था सेम वही हुआ. हम कैंप 3 कैंप 4 के बीच थे, 8100 मीटर पे लगभग, और मेरा ऑक्सीजन सडनली खत्म हो गया. और जब आप और मैं यहाँ कितनी सांसें ले रहे पता नहीं चल रही ना, इतना इजी सांसें जा रही है. जब एक सांस भी नहीं आती और आप चाहते हो एक ऑक्सीजन का वो आ जाए, तब पता चलता है कितनी कीमती होती है ऑक्सीजन. जैसे मैं आपके कहूँ कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, तो फिल्मी डायलॉग में बोलेंगे प्यार चाहिए, प्यार चाहिए. जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. एक सांस नहीं आई थी. ऐसे टाइम में मेरे शेरपा, अधिकतर शेरपा छोड़ के भाग जाते हैं. मैंने अपने शेरपा को भी बोला था कि दाई आप चले जाओ, मेरा शेरपा मुझे छोड़ गया. उसकी वजह बाद में उन्होंने बताई कि पहली बार उनको कोई लग रहा था कि बहनी मेरा मर रहा है, वरना दूसरे क्लाइंबर शेरपा को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, भारतीय लोग एक निवाला भी खाते तो हमेशा दूसरों से पूछते. वो मुझे छोड़ के नहीं गया, लोग मुझे क्रॉस कर रहे थे. मेरा दाई सबको बोला था कि बहनी मरने वाला है, किसी के पास बचा हुआ ऑक्सीजन हो तो दे दो. कहते ना किस्मत नहीं पता होता किसी को. तभी लाकपा दाई, मेरे शेरपा का दोस्त वहां से गुजरा, उसने कहा कि मेरा क्लाइंट ऊपर मर, उसका बचा हुआ ऑक्सीजन है. तो मुझे उनका ऑक्सीजन, बचा हुआ ऑक्सीजन मुझे मिला और मुझे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती और गहरी सांस मिली. तब मुझे एक चीज, मौत को छूकर मैं लौटी हूँ ना, तब मुझे पता चला कि जिंदगी कितनी कीमती है. जब हम अस्पताल पहुंचे काठमांडू, मुझे एक चीज और पता चली कि वो क्लाइंबर थी अंजलि कुलकर्णी और शरद कुलकर्णी. आपने शायद अखबार में पढ़ा होगा 2019 में कि उनकी वाइफ के ऊपर डेथ हो गई थी और उनके हस्बैंड ने एक बुक लिखी है उनके ऊपर, इंग्लिश में और मराठी में. उन्होंने इसमें जिक्र किया है, अंजलि कुलकर्णी मैम का ऑक्सीजन मुझे मिला था, कि उसकी, अंजलि की सांसें आज भी मेघा के अंदर चलती है. जब मैं उसके गले में एक एक सांसें लेता हूँ, देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अंजलि सांस ले रही है और उसकी सांसें किसी ही व्यक्ति के अंदर है. तो हमें नहीं पता होता कि कहाँ कब चीजें जुड़ती है, और मुझे लगता है मेरे जीवन अब किसी का अमानत है और इसीलिए मैं ये सब कुछ करती हूँ. मैं पहले बड़ी सेल्फिश थी, बड़ी ईर्ष्यावान भी थी. इसके बाद मुझे कि सब बेमानी है, ये जिंदगी बहुत कीमती और हमें कुछ ना देने के लिए भेजा है. इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, महसूस करने को, कि हम लोगों के पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को. संभावना में हम कुछ ही कर सकते हैं, इस दुनिया को बदल सकते हैं. और इस दुनिया में ना प्यार की बड़ी
बड़ी कमी है, आपको भी कभी कभी महसूस होती है। तो मेरे को ढेर सारा प्यार बांटना है, ढेर 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 सारा प्यार बांटना है, ढेर सारे पेड़ लगाने, झूठे वाले नहीं। अब मैं पहले क्या करती थी, फोटो लगा के पेड़ लगा के भूल जाती थी। अब प्लांटेशन करती हूँ तो मैं सच्चा वाला प्लांट लगाती हूँ कि हाँ वो जिंदा रहना चाहिए, ऐसा वाला। और फिर मैंने और माउंटेन्स क्लाइंब किए, और जब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उसका जो फायदा मुझे हुआ माउंट एवरेस्ट चढ़ने के, पहले मुझे मध्य प्रदेश की कैबिनेट में सम्मान हुआ, प्रधानमंत्री जी ने रीट्वीट किया, मध्य प्रदेश की जीके की बुक में नाम आया, ये सब अलग चीज थी, मेरे पापा को प्राउड फील हुआ। उससे ज्यादा जो मुझे लगता है, जब बच्चियों का फोन आता है और उनके पापा का फोन आता है ना कि अब हमारी छोरी के भी हम दूसरे दूसरी चीज में तुम्हारा जैसा आगे बढ़े, वो थोप दिया जाता कि बीए लो। अब उन्हें हर चीज के लिए परमिशन है कि वो ये भी ले वो भी ले, ऐसा करे, वो मेरे लिए रियल अचीवमेंट होता है। तो मैं मेरे उम्र की सेलिब्रेशन करवाती हूँ, स्पेशली बच्ची हो तो सेलिब्रेट करो। अंतर उसी दिन से शुरू हो जाता है, जब लड़की पैदा होती है तो ठोकते हैं, लड़का पैदा होता है तो हम ढोल ठुकवाते हैं, लड़की पैदा होती है तो हम गुड़ बंटवाते हैं, लड़का पैदा होता है तो मिठाई बंटवाते हैं। तो पहले तो मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद यही किया महिला बाल विकास के साथ कि क्या होते ही सेलिब्रेशन करो, वहीं से मानसिकता चेंज करो, उसका भी सेलिब्रेशन होना चाहिए। दूसरी चीज ये होती है कि जो मेरे एज की महिला हैं उनके लिए मुझे सबसे ज्यादा पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग, मेरे एज की लड़की सबसे ज्यादा ब्लैकमेलिंग का शिकार होती है, वो मेरे एज की बच्चियां होती है, कॉलेज में स्कूल में। तो उनके लिए मैं काम कर रही हूँ कि पहला कदम ही सुरक्षा है। फिर दूसरी चीज की पीरियड्स के ऊपर हम बहुत फालतू बातें करते हैं, बहुत सारे पैड के ऊपर भी बात नहीं करते। तो मैं खुद मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हूँ। भी मेरे माउंट एवरेस्ट के टाइम पता नहीं था कि कप भी होता है, टेम्पोन भी होता है, और ना मुझे मुझे पता होता था, और आसान रास्ते हो जाते। तो मैं उसके लिए अवेयर करती हूँ। और मैंने इस बार लॉकडाउन में देश का पहला स्क्रीनशीट मास्क बनाया था, जो मास्क आपको 200 रुपए का मिलता, वो हमने जुगाड़ से 10-10 रुपए का बनाया था, और सभी को पहली बार पॉकेट मनी से फ्री में डोनेट किया था। और अब भी जो मैं कर रही हूँ वो छोटा सा काम कर रही हूँ मैं। हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी में अंतर नहीं ला सकते, पर हम एक ही जिंदगी तो बना सकते हैं ना। मेरे मरने के बाद एक लाइन खड़ी है अच्छे लोगों की, तो मैं एक बच्ची अडॉप्ट की, वो एक ट्रांसजेंडर वुमन है, किन्नर है, और मुझे ऐसा बनाना है कि वो पूरे देश में एक मिसाल बने। बस इतनी सी मेरी जर्नी है। वाह, कहते हैं ना कि कमल की जो रीढ़ होती है, उसकी जो डंडी होती है, महिलाएं औरतें बिल्कुल वैसी होती है। हल्के से हवा का झोंका आता है, वो झुक जाती है, लेकिन तेज तूफान में भी वो टूटती नहीं है। वुमन इज लाइक अ रीड which bends at every breeze but breaks not even in the tempest, and that's what Megha is like. Definitely there will be many girls in the society who would draw inspiration from this amazing story, a saga of success, struggles at the social level, family level, environment, and to overcome all this and then to scale the pinnacle of success. I'm sure this will inspire generations to come. थैंक यू वेरी मच मेघा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातचीत हमेशा आपसे होती है और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और जैसा मैं हर बार कहती हूँ, एक ना एक दिन तुम पर एक बायोपिक मूवी जरूर बनेगी। वाकई में बहुत इमोशनल स्टोरी है तुम्हारी। As we all say that the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. All the very best, Megha. May all your dreams come true. May you get all the success and happiness you desire, you deserve. Thank you for inspiring us. And thank you, everyone else, for watching this Fire Chat